Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Physics Classes. Here in this channel, I will provide some lectures on the subject physics for class 12 as well as for class 11. Okay, so before starting the contents of the particular subject for class 12, I would like to recall what is the physics, what is the aim of this particular subject, what are the basic difficulties which students usually face in study of this subject, and what are their solutions. Okay, so I will give you some ideas, some tricks regarding the subject and how we can make this subject very easy. Okay, so stay tuned, stay connected, watch the video till the end. If you have any doubt, any query, any feedback which you want to give, then please write in the comment box. Okay, so first of all, the word physics. The word physics was originated from the Greek word which name physis, P-H-U-S-I-S. Okay, and the meaning of this word physis is the nature. So in brief, we can say that the physics is the study of the nature or the natural phenomena which we observe in our daily life, as well as to apply the laws of that particular natural phenomena to invent something new. Okay, to design a particular device which is useful for our daily life is also comes under the same subject physics. Generally अपनी लाइफ में हम जितने भी डेली लाइफ में इक्विपमेंट्स यूज लेते हैं, जो डिवाइसेस यूज लेते हैं, either it is a bulb, it is a fan, it is a refrigerator, it is mobile, it is a telephone, etc. Any of the equipment which we are using in daily life is the invention of the physics. So it is very important subject and very interesting subject. So, but usually students face some difficulties in this study of this particular subject. So we will go at that particular topic, at that particular point afterward. So before, in physics, whenever we discuss a particular topic, then there are few steps in which we have to cover that particular topic. And these steps are, the first step which we have to suppose is the definition. If suppose the new topic is to be covered, then we have to define something along with the diagram. The diagram may be ray diagram, maybe circuit diagram, diagram of a machine, etc. Okay, so this particular topic, first point is the definition and diagram. Definition and diagram. The diagram may be ray diagram, circuit diagram, diagram of a machine, etc. Okay. So second point which we cover in this subject is the introduction of that particular diagram. जो डायग्राम हमने बनाया उसको हमें इंट्रोड्यूस करना होता है कि हमने उसमें क्या क्या चीजों को कंसीडर किया है. ओके, सो दैट इज द सेकंड पॉइंट व्हिच इज इंट्रोडक्शन. Introduction of diagram. And the third point which we usually cover in a particular topic is the mathematical derivation. Okay, in which we use the help or we use the mathematics, okay, as a tool and derive some particular formula. Okay, so that is the mathematical portion, the mathematical derivation. तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें उसका प्रोसीजर कि उस डेरिवेशन को हमें कैसे करना है, उसका प्रोसीजर हमें ध्यान रखना पड़ता है. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज द मेन पॉइंट व्हिच इज एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला व्हिच वी डिराइव और एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ. ओके, तो 4 पॉइंट जिसमें हम कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए भी हम उसको यूज ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम उसको किसी पर्टिकुलर डिवाइस को डिजाइन करने के लिए भी यूज ले सकते हैं. So that is the fourth and most important point, the application of formula derived. Okay, so these are the main 4 points which we have to cover in the physics. Okay, for almost topics.
देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस। जब भी मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करता हूँ तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिसमें हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट डायग्राम बना के हम उस डायग्राम को इंट्रोड्यूस करते हैं, मैथमेटिकल उसकी डेरिवेशन करते हैं और देन उस फॉर्मूला को जो हमने डिराइव किया है उसको हम यूटिलाइज करते हैं किसी अदर पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए या किसी अदर पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। ओके, नाउ क्या डिफिकल्टीज जनरली स्टूडेंट फेस करते हैं जब हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाई किए हैं। दैट आर फर्स्ट पॉइंट, जब मैं कभी बच्चों से बात करता हूँ, उनको पूछता हूँ कि तुम्हें फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों लगता है, तो बच्चे एक जवाब देते हैं कि सर सब कहते हैं कि डिफिकल्ट है। ओके, सब कहते हैं, इवन स्टूडेंट सेज दैट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसमें भी आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड लिख के अगर हम कुछ सर्च करते हैं देन इट गिव्स यू द फर्स्ट नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज फिजिक्स। ओके, बट मैंने भी उसको सर्च किया, मैंने चेक किया कि क्या प्रॉब्लम क्या है, तो उसमें देखा कि फॉर इट इज वैलिड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पर्संस। ओके, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स डिफिकल्ट है। तो मैंने फिर बच्चों को गाइड करना शुरू किया कि तुम मेजॉरिटी में क्यों आते हो, स्टे इन द माइनॉरिटी, आप अपने लिए इजी उसको कंसिडर करो। क्योंकि देखो हर चीज किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के रिगार्डिंग कही जाती है। अगर किसी एक बंदे को फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है तो वो उसको अपने रेफरेंस से कह रहा है, लेकिन अगर मान लो हम अपनी बात कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे रेफरेंस अलग हो और हम उसको इजी कंसिडर कर सके। ओके, तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें ये जो रूमर्स होते हैं उन पर नहीं जाना, हमें अपने लेवल पे, जैसे हम सबके फेसेस अलग अलग हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, हमारे जो नेचर है हम सबका वो अलग अलग है, हमारा बिहेवियर, हमारी पैशंस, वो सब चीजें अलग अलग होती है, हम सब यूनिक है। इवन जो कलर हम जिस कलर का नाम बता रहे हैं हो सकता है ये कलर भी हमें डिफरेंट दिखाई दे रहा हो, बट हम बोलते हैं उसको सेम नेम से, दैट इज ग्रीन। ओके, सपोज दिस कलर की मैं अगर बात करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है या ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमें सबसे पहले जब हमने इसको डिफाइन किया तो हमें यही सिखाया गया कि ये कलर जो है ये ग्रीन कलर। ओके, तो हमने उसी कलर को यूज लेना शुरू किया, उसी नाम को याद करना शुरू किया और आज हम सभी ये कह रहे हैं कि ये ग्रीन कलर, हो सकता है किसी को पिंक दिख रहा हो। ओके, इट मे पॉसिबल। तो सबसे बड़ी बात कि हमें जो अफवाहें होती है, जो रूमर्स होते हैं, जो लोग कहते हैं उसको नहीं सुनना, हमें अपने लेवल पे उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वास्तव में मेरे लिए ये डिफिकल्ट है या मैं इसको इजी बना सकता हूँ। ओके, क्योंकि कुछ भी डिफिकल्ट और इजी होता नहीं। अगर मैं एक बात इसमें कहूँ कि कुछ भी डिफिकल्ट और इजी नहीं होता, जिसको हम मान लेते हैं कि वो डिफिकल्ट है या इजी है वो ही हमारे लिए रियलिटी बन जाता है। ओके, तो इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि हमें फिजिक्स को डिफिकल्ट कंसिडर नहीं करना है। ओके, दूसरा, जनरली स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि एक ही थॉट प्रोसेस से हम सारे सब्जेक्ट्स को डील कर सकते हैं। नहीं, आपको इंग्लिश के लिए अलग थॉट प्रोसेस चाहिए, केमिस्ट्री के लिए अलग थॉट प्रोसेस चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए अलग थॉट प्रोसेस चाहिए, वैसे ही फिजिक्स के लिए अलग थॉट प्रोसेस चाहिए। तो आपको डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, वो क्या है थॉट प्रोसेस उसको मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, लेकिन अलग अलग थॉट प्रोसेस से हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को डील कर सकते हैं और हर सब्जेक्ट को हम हमारे लिए इजी बना सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें साइंस पढ़नी है, 11th 12th है, आगे भी हमें आगे जाना है, तो हमें उसको डिफिकल्ट कंसिडर नहीं करना है, हमें उसको इजी कंसिडर करके प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप वो सब्जेक्ट हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट जो जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया, हमें चलो डेरिवेशन के स्टेप्स भी याद हो गए, लेकिन जब उस फॉर्मूला को हमें किसी न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई करना होता है तब हम फंस जाते हैं। ओके, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करना होता है, किसी डिवाइस को स्टडी करने के लिए अप्लाई करना होता है, उसको समझने के लिए, तो हम वहां पर एप्लीकेशन पार्ट में हमें दिक्कत आती है। तो बेटा उसके लिए इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमें उसके पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। हमें टाइम देना पड़ेगा, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे डेडिकेशन होना चाहिए कि हम पूरा टाइम उसको दें, उसको समझें। तो इस वे में प्रैक्टिस से हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से ओवरकम हो सकते हैं। ये जो डिफिकल्टी है कि हमें एप्लीकेशन अप्लाइड पार्ट में दिक्कत आती है, तो दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। ओके, सो दीज आर द सॉल्यूशन। एक पॉइंट मैं और यहाँ ऐड करना चाहूंगा, जो मैंने कोट भी यहाँ पर लिखा है, that imagination is more important than knowledge. This quote is given by Albert Einstein sir. Okay, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। क्यों इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है? ओके, इमेजिनेशन ही सारे इन्वेंशंस
क्या एक शुरुआत है। अगर हम इमेजिन ही नहीं करते किसी चीज को तो हम उसको कैसे इन्वेंट करें, कैसे हम उसको इनोवेट करें। ओके, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्कोनी ये इमेजिन नहीं करता कि हम टू वे वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो वो हम आज डेली लाइफ में उसको यूटिलाइज नहीं करते। ओके, ऐसे ही गैलीलियो अगर टेलीस्कोप को इमेजिन नहीं करता कि हम दूर की चीजों को पास में देख सकते हैं, उनको डिस्टेंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, तो उस इमेजिनेशन से ही हमने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर डिवाइस को इन्वेंट किया। जितनी भी डिवाइसेस हम डेली लाइफ में यूज लेते हैं, एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया था, तो उसने भी सबसे पहले इमेजिन किया कि क्या मैं ऐसी कोई चीज बना सकता हूँ जिससे मैं नाइट में भी ऑब्जर्व कर सकूं, चीजों को देख सकूं। तो दैट इज ऑल्सो द इमेजिनेशन। तो हमें अपनी इमेजिनेशन और उसी इमेजिनेशन की हेल्प से नॉलेज क्रिएट हुई। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो इमेजिनेशन के रिगार्डिंग आता है कि क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज से, क्योंकि नॉलेज को क्रिएट करता ही इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन भी एक तरह का इल्यूजन है। ओके, अभी मैंने जैसे बात की थी कि इल्यूजन जो होते हैं उसको अगर हम बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हैं कि हमने कुछ चीज इमेजिन की, तो वो इल्यूजन भी हमारे लिए रियलिटी बन सकता है अगर हम उस पर प्रैक्टिस करें, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में एफर्ट करें। ओके, केवल सोचने से नहीं होगा कि हमने कुछ सोचा और बस बैठे हैं सोच के, तो कुछ नहीं होने वाला। हमें उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एफर्ट करने पड़ेगी, तो हमारा जो एफर्ट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा और उस पर्टिकुलर चीज को इन्वेंट करेगा। ओके, सो दिस इमेजिनेशन। एक और चीज कि इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम जब भी फिजिक्स में कोई चीज पर्टिकुलर डायग्राम, जैसे मैंने एक पॉइंट बताया था यहाँ पे कि डायग्राम को हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, क्योंकि डायग्राम अगर हमें समझ में आ गया, याद आ गया कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का क्या डायग्राम है, तो हम उस पर्टिकुलर डायग्राम की हेल्प से उसी को इंट्रोड्यूस करना है और उसी डायग्राम को देखते हुए हमें डेरिवेशन के स्टेप अपने आप याद आ जाते हैं। So the diagram is the important thing, and the diagram is also learned with the help of imagination. है ना, हम किसी भी पर्टिकुलर डायग्राम को अपनी इमेजिनेशन, एक पिक्चर हम अपने माइंड में उस पर्टिकुलर डायग्राम की बना लें, तो वो भी क्या है, हमारा इमेजिनेशन। ओके, एक मूवी सुपर 30 में एक सॉन्ग था क्वेश्चन मार्क, अगर आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो तो एक बार देखना उसको। तो उसमें भी क्या बताया हुआ है कि बच्चे कैसे इमेजिन कर करके सीखते हैं कि चीजों को, कोई मशीन है, कोई डिवाइस है, तो उसमें हम बिना उसको ओपन किए, बिना उसके अंदर गए, हम उसकी कंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं पास। दैट इज द इमेजिनेशन पावर। जितनी ज्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर होगी उतने ही ज्यादा हम फिजिक्स को इजीली समझ पाएंगे, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। ओके, मैं फिर कह रहा हूँ, तो दैट इज प्रैक्टिस करो, इमेजिन करो चीजों को। जैसे हमने कहा कि एक पर्टिकुलर दो मासेस हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हम बात करते हैं, तो हमें अज्यूम करो कि यहाँ पर दो मासेस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस r है और उन दोनों के मासेस m1 m2 है। तो अगर हम न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग करें तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो फॉर्मूला भी हमें इमेजिनेशन में दिखेगा, याद हो जाएगा। ओके, तो कोई भी डायग्राम हो, कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो 2 डायमेंशनल डायग्राम है, चाहे 3 डायमेंशनल डायग्राम है, हम उसको इमेजिन करके हम उसके एक इमेज अपने माइंड में बना के उसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक उसको याद रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन डिफिकल्टीज और उनके जो सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए। तो पहला, तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग अपने माइंड को सेट नहीं करना कि फिजिक्स जो है वो डिफिकल्ट है, हमारे लिए वो हो सकता है इजी हो अगर हम प्रैक्टिस करें। ओके, दूसरा, एप्लीकेशन पार्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए यही एक सॉल्यूशन है कि आपको सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तीसरा, इस थॉट प्रोसेस से कि हमें इमेजिनेशन की हेल्प से इस सब्जेक्ट को समझना है, इस थॉट प्रोसेस से हमें वर्क करना है। तो फिजिक्स को समझने का अलग एक थॉट प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम फॉलो करें तो वी कैन गो अहेड। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग our syllabus for class 12 according to the CBSE board. Mainly, the whole syllabus is divided into the 10 different units, and these 10 different units
contain total 14 chapters. Okay, the first unit is named Electrostatics. And this unit contains two chapters, chapter 1 and chapter 2. Okay. So first thing, chapter 1 is the electric charges and fields, and second chapter is electric potential and capacitance. Okay. So in this electrostatics, first word, इसका जो total weightage होता है according to the 2019-20 syllabus, इसका जो total weightage है that is around 8 to 9 marks. Okay, first and second both unit combinedly have 16 marks weightage out of 70. So on the average we can say 8 to 9 marks इस दोनों chapters को या इस particular unit का हम weightage ले सकते हैं. Okay. Now the meaning of this electrostatic. अच्छा एक और चीज, अभी लेटेस्ट एक नोटिस सीबीएसई ने रिलीज किया था, उसके अकॉर्डिंग अपना जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसमें एक स्लाइड चेंज है कि 20% जो है अपना क्वेश्चन पेपर दैट विल बेस्ड ऑन ओडीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो गए. Okay, around 14 marks we can say, 20% of the 70 is 14. Okay, similarly 20% portion based on the case based or source based integrated question. Okay, again same 70%, 70 marks का 20% कितना होगा 14. So 14 mark question will be case based or source based integrated questions, and the remaining part which is 60%, around 42, okay, 42 marks of the 70 is based on short answer and large answer type questions. Okay, short answer and large answer type हमने ODQs को 11th में डील किया है. शॉर्ट आंसर्स, लार्ज आंसर्स, इस पैटर्न को तो हम फैमिलियर है, लेकिन ये केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, वो मैं आगे जब एक दो टॉपिक कवर हो जाएंगे तब मैं उस पॉइंट पे जाऊंगा कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस केस बेस्ड एंड सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक. द इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक इन दोनों के हम अलग अलग मीनिंग देखें तो इलेक्ट्रो वर्ड इज फॉर इलेक्ट्रॉन, टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन को हम कैसे जानते हैं, क्या उसका नेचर है कि इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज होता है, इट इज अ चार्ज पार्टिकल. मास तो सबका ही होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम जो हमने दिया है उस पर्टिकुलर पार्टिकल को वो उसके चार्ज के लिए दिया है. तो इसलिए हम यहाँ इलेक्ट्रो चार्ज की जगह यहाँ वर्ड यूज लेते हैं इलेक्ट्रो. एंड दिस पर्टिकुलर स्टैटिक्स मीन्स the state of rest. Okay, so electrostatic is the branch which deals with the charges which are at rest. तो जब भी चार्ज रेस्ट में होगा उसको अगर हम डील कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. और अगर चार्ज मोशन में चला जाए तो हम उसको आगे फर्दर यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड में डिस्कस करेंगे कि उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कैसे हम करंट्स की बात करते हैं, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड जो उससे प्रोड्यूस होता है चार्ज पार्टिकल के मोशन से. तो दैट ऑल वी विल डिस्कस इन द next units, but here in this particular unit which contain both the chapters 1 and 2, here we will study the charges at rest. Okay, कभी भी हम चार्ज के मूवमेंट की बात नहीं करेंगे. जब जो भी सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं उस सिस्टम के जो चार्जेस होंगे they will be at rest. Okay, so the first chapter we are going to start chapter first, and it is electric field, electric charges, and fields. Okay, so electric charges and fields. One more thing, आप चाहें तो पोज करके साथ में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं. इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, फिजिक्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने खुद के साथ नोट्स बनाएं. ठीक है, एक और चीज कि हम जो यहाँ स्टडी करेंगे, सो इन दैट
particular study we will refer more mainly NCERT. Okay, NCERT textbook जो CBSE prefer करता है, so we will prefer the NCERT textbook along with the question papers of the previous years. At least 5 year की question paper तो हमें देखने ही देखने चाहिए, उसके एक ही questions को हमें solve करना चाहिए. तो 5 years previous question paper and जब हमारे एक दो chapters एक दो units हो जाएंगे, then we will also discuss या पूरा syllabus होने के बाद भी हम उस चीज को कर सकें, that is the sample papers. Okay, solution of solving the sample paper, that is the most important part. कि जब हमारा सिलेबस पूरा कवर हो गया तो हम अलग अलग सैंपल पेपर्स को डील करें कि हम जितने ज्यादा सैंपल पेपर्स को सॉल्व करते हैं उतना ही ज्यादा हमारी नॉलेज भी इंक्रीज होती है, उतनी ज्यादा हमारा स्कोर जो मार्क्स मिलते हैं हमें फाइनल रिजल्ट में, फाइनल एग्जाम में, तो वो भी बहुत ज्यादा होते हैं. तो इन दिस पर्टिकुलर वे 3 things we will refer. First one will be NCERT, then second one is the previous year question papers, and third one is the sample papers. Okay, so now here the chapter was electric charges and field. Okay, so electric charges, the first topic. The electric charges. So what are the electric charges? Electric charge एक inherent या fundamental और basic property है किसी particular object की. Suppose I am taking this chalk. ओके, तो जैसे एक मास हम कहते हैं कि मास एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि बिना मास के कोई पार्टिकल नहीं हो सकता, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं. ओके, मैं फिर कह रहा हूँ फिजिक्स में हर जगह कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल केसेस होते हैं. जैसे अगर हम बात करें न्यूट्रिनो की तो चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल उसको कहा जाता है, बट हम जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस है उसके बेसिस पर कह रहे हैं कि सपोज ये चौक है तो इस चौक में क्या मास तो इसका है लेकिन इसके अंदर चार्जेस भी है. ओके, अब वो चार्जेस है क्या, तो हम अगर देखें तो हर मटेरियल हर मैटर किससे बना होता है, एक एटम्स की कॉम्बिनेशन से बना होता है. ओके, और एटम्स में क्या क्या होते हैं जो मेन जो हम पार्टिकल स्टडी करते हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते हैं. तो वैसे तो न्यूक्लियस के अंदर मोर देन 100 डिफरेंट एलिमेंटरी पार्टिकल्स एक्सिस्ट करते हैं, लेकिन हम अपने लेवल पर अगर बात करें तो मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब इन तीनों को जो हमने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो दे आर हैविंग डिफरेंट चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, चार्ज की जो इनकी प्रॉपर्टीज है, चार्ज की इनकी वैल्यू है वो अलग अलग है. जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है ना. प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है. अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है. ओके, तो जरूरी नहीं है हर पार्टिकल का चार्ज हो, न्यूट्रॉन भी चार्ज लेस है, एक्सेप्शनल केसेस की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन ये है बॉडी जो है उसके ऊपर चार्ज होगा क्योंकि वो एटम से कंसिस्ट है और एटम में चार्जेस होते हैं. बट कोई बॉडी चार्ज कब कहलाती है, दिस बॉडी सपोज मैं अगर इसकी बात करूं, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का नंबर सेम है. ओके, सपोज कि यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का नंबर सेम है, तो क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन है जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है. जब हम टोटल चार्ज इसका फाइंड करेंगे तो दैट कम्स टू बी 0. ओके, सो अ बॉडी कैन बी न्यूट्रल व्हेन द चार्ज amount of the negative charge and the amount of positive charge are equal. Okay, but suppose मैं क्या करता हूँ, इसमें से 1000 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल. Okay, then there will be deficiency of the 1000 electron on this particular charge, and due to this deficiency of that charges, it will behave like a positively charged body. Okay, इसको हम क्या कहेंगे, positively charged body, क्योंकि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव कर दिए. और सपोज करो कि मैं अगर एक ग्लास रॉड है, इमेजिन कि ये ग्लास रॉड है और इसको किसी सिल्क क्लॉथ के ऊपर, सपोज दिस क्लॉथ इज सिल्क, इस पर अगर मैं रब करता हूँ तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो सपोज ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पर चले जाए. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये दोनों ही चार्ज हो गए. ओके, जहां से इलेक्ट्रॉन गए वहां डेफिशिएंसी हुई तो दैट विल बी व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज. और जहां इलेक्ट्रॉन आए वहां एक्सेस में चार्ज है ना. अगर किसी भी बॉडी पर चार्जेस एक्सेस में होते हैं देन इट विल बिहेव लाइक अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी. ओके, सो चार्जेस दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. मास जो होता है वो केवल पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव मास इज नॉट पॉसिबल. ओके, फॉर आवर न्यूटोनियन मैकेनिक्स. सो पॉजिटिव चार्ज की जब हम बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वहां इलेक्ट्रॉन्स
ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो उसी बेसिस पर हम चार्ज को डिफाइन भी करते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, if there is a body is said to be charged if there is deficiency or excess of electron on that particular body. If there is deficiency, then it will be positively charged. If there is excess of electrons, then it is negatively charged, because electron itself have the negative charge particle. Okay, so electric charge is the inherent property of a body like mass. Okay, yeah, just like the mass. A body is said to be charged if there is deficiency or excess of electrons. Okay, so अगर किसी बॉडी पर चार्ज जरूरत से ज्यादा है या जरूरत से कम है, तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी चार्ज है. ओके, अब बॉडी विल बी न्यूट्रल if the amount of positive charge and amount of negative charge are equal. Okay, so a body will be neutral if amount of positive and negative charge, ये charges are equal. यानी जितने प्रोटॉन्स हैं उसमें, है ना, बॉडी में, उतने ही अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस पर्टिकुलर बॉडी को हम न्यूट्रल बोल देते हैं. ओके, नाउ नोट डाउन, आप पोज करके नोट कर सकते हैं इसको. नाउ अगर हम टाइप ऑफ चार्जेस की बात करें, types of charges, the first one is positive charge. और पॉजिटिव चार्ज कब होती है बॉडी, जब वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज. When there is excess of electron, due to excess of electron. Okay, now the charge of electron is negative. और सपोज अगर मैं इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को QE से लिखूं, ओके, इसको वैसे E से भी डिनोट करते हैं, आगे बताऊंगा. तो QE, the charge of electron is -1.6. इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 10 to the power -19 coulomb. The coulomb is the SI unit of the charge. Okay, the SI unit of charge is coulomb. Okay, now if I say the charge of proton, then the numeric value will be same, only the sign will be positive. Okay, it means electron and proton both are having the same amount of charge, but their nature are different. Okay, so charge of proton is positive. Its value is QP is plus 1.6 10 to the power -19 coulomb. एक और चीज, इसको हम -E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको +E से. ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना 1.6 10 power -19, इसको हम E सिंबल से डिनोट करते हैं. तो दिस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिनोटेड बाय -E and charge of proton can be denoted by the +E sign, and E value of E is
1.6 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, so this is the coulomb. If we say dimensional formula of charge, देखो हमने 11 सेकंड चैप्टर में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस लिखे थे. इवन जब हम अलग अलग डेफिनेशन को अलग अलग चैप्टर्स में डिफाइन कर रहे थे, देन आल्सो अलोंग विद द पर्टिकुलर फार्मूला वी राइट द डायमेंशनल फार्मूला. तो हियर आल्सो इन क्लास 12 we will, whenever we define some new physical quantity, then we will write its SI unit along with its dimensional formula. Okay, so dimensional formula of charge, इसको हम इस वे में लिखते हैं T1A1. ओके, और यू कैन राइट A1 T1. एट से इसको याद रखेंगे, जल्दी याद होगी. ओके, अब ये आया कहां से ये डायमेंशनल फार्मूला? इस डायमेंशनल फार्मूला को हम डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ करंट, जो हमने क्लास 10th में स्टडी की थी. तो करंट की डेफिनेशन क्या थी? करंट I इज इक्वल टू Q बाई T. ओके, Q by T, and here from this expression we can write Q equals to I into T. Current into time is equals to charge, and we know both the electric current and time are the 7 fundamental SI units. Okay, in terms of which we write the dimensional formula. So here for this current I, the ampere is the unit for the current, and we use dimensional formula A1. करंट की यहाँ पर यूनिट पावर 1 है आई की, तो ए की पावर 1, एंड टी इज फॉर टाइम, एंड हियर फॉर टाइम वी यूज T1. ओके, तो T1 A1 will be the dimensional formula for the charge. Okay, now next one, the charge is a scalar physical quantity. The charge is scalar physical क्वांटिटी. क्या होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होना या डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं. ओके, तो चार्ज जैसे मास इज अ स्केलर, टाइम इज अ स्केलर, वॉल्यूम इज अ स्केलर. सिमिलरली द चार्ज इज आल्सो अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. ओके, सो राइट डाउन ऑल दीस पॉइंट्स. Now, the next some other properties of charge. Okay. Some other properties of charge. Okay, the first property we can, like charges repel each other, we all know, and unlike charges attract each other. Okay, so first property is, जल्दी से लिखते हैं इसको, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Okay, जल्दी शॉर्ट में हम कंप्लीट करते हैं इसको. So next one, the main important property, which is the quantization of charge. Okay, quantization, ये वर्ड नया है तुम लोगों के लिए, लेकिन कई जगह यूज आएगा. ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. जब हम एटॉमिक फिजिक्स डील करेंगे, ओके, तो एटॉमिक फिजिक्स इज द चैप्टर नंबर 12. In that particular chapter, we will discuss that in particular Bohr model of atom, electron revolves in that particular orbit. तो जो angular momentum होता है इलेक्ट्रॉन का, वो भी क्वांटाइज्ड होता है. टोटल एनर्जीज जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो भी क्वांटाइज्ड होती हैं. ठीक है, वेलोसिटी वैल्यूज जो लेता है दैट इज आल्सो क्वांटाइज्ड. तो क्या है मीनिंग इस क्वांटाइजेशन वर्ड का? ओके, बहुत सिंपल सा मीनिंग है. जैसे हम मार्केट से कोई चीज परचेज करने जाते हैं, ओके, तो सपोज मुझे
कोई कोई भी आइटम, मान लो ग्रोसरी आइटम अगर मुझे परचेज करना है तो क्या होगा कि मुझे वो बल्क अमाउंट में लेना होगा, कि जैसे 1 kg के पैकेट्स हैं। क्वांटाइजेशन वर्ड जो है ना बेसिकली क्वांटा से बना है ना, इट इज ओरिजिनेटेड बाय द वर्ड क्वांटा, एंड क्वांटा का मीनिंग क्या है कि पैकेट्स। ओके, सम पैकेट्स में हमें अगर कोई चीज मिलती है देन वी कॉल इट क्वांटा। ओके, तो जो टोटल चार्ज है किसी भी बॉडी के ऊपर, जो टोटल चार्ज आता है वो भी क्वांटाइज्ड होता है। ओके, अगर मैं इसको सिंपल वे में कहूं कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, जिसको हम कह सकते हैं कि उससे कम हम चार्ज ले नहीं सकते, and that is smallest amount of charge, it is the fundamental amount of charge, fundamental unit of charge is the charge of one electron. ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल किसी भी बॉडी पर चार्ज आ सकता है। ओके, इसको अगर मैं सिंपल सी इक्वेशन से बताऊं तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ओके, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ग्लास रॉड लें और एक सिल्क का क्लॉथ लें, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम द ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो एक इंटीजर होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए या 10.9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो ये डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा उसमें। ओके, या तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1000 ट्रांसफर हो रहे हैं, 500 ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इट विल बी अ इंटीजर नंबर। ओके, और ये n जो है दैट बिलोंग्स टू z। ओके, नेगेटिव भी वैल्यू ऐसे ले सकते हैं कि नेगेटिव का मतलब वहां डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और पॉजिटिव अगर चार्ज आता है तो वहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो नंबर यहाँ n जो है ना, दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ओके, हो सकता है कि उस बॉडी पर आए हो सकता है बॉडी से चले गए। ओके, तो दिस इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कह सकते हैं, फंडामेंटल चार्ज कह सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Okay, so this equation represents that total charge on any body is integral multiple of the smallest amount of charge, which is the charge of the electron. Okay, so this is Q equals to plus minus Ne. This equation is called quantization. तो हम किसी बॉडी पर जो चार्ज ले सकते हैं फ्रैक्शनल चार्ज, यानी कि इस Q की n की वैल्यू जो है यहाँ पर वो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती। जैसे हम एक एग्जांपल है कि सपोज किसी बॉडी के ऊपर 1 मिली कूलम का चार्ज है। ओके, लेट फॉर एग्जांपल इफ अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ 1 मिली कूलम, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब वो एक्सेस में भी हो सकते हैं, वो उसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि वो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है बॉडी या नेगेटिवली चार्ज। हम अभी केवल n पर फोकस करते हैं, प्लस माइनस साइन को यहां नहीं ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट विल बी, कैसे लिखेंगे इसको, बहुत सिंपल सा इसी फॉर्मूले को यूज लेना है। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और उसको हम q अपॉन e से लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज सिंपल। तो इट विल बी Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 मिली कूलम, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, E की वैल्यू सॉरी, E इज 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, सो कूलम विल कैंसिल आउट, मिली मींस 10 to the power minus 3 and divided by 1.6 10 to the power minus 19. This is the number of electron. We will not have any unit. ओके, ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो फैक्टर हमारे पास आएगा दैट विल बी 6.25 10 to the power कितना होगा, देखो 18, इसको मैं 10 अपॉन 1.6 ले रहा हूं, तो 10 पावर प्लस 19 माइनस 3, तो 19 माइनस 3 इज 16 एंड 16 में से अगर मैंने 10 को रिड्यूस कर दिया एक पावर, तो 10 पावर 15 आ जाएगा, 10 to the power 15. So this is the total number of electron which will be on that particular body in excess or in deficiency in case if it having the charge of 1 millicoulomb. Okay, similarly 1 coulomb charge होगा तो ये 10 power minus 3 वाला फैक्टर यहाँ नहीं आएगा, it will be simply 1 coulomb, और ये जो पावर है 10 to the power ये 18 हो जाएगी।
ओके अगर माइक्रोकूलम की बात करें 1 माइक्रोकूलम चार्ज है तो इसको 10 पावर -6 करेंगे तो इसमें से और 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो इट विल बी 10 पावर 12 ओके सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट the total number of electron on a particular body if it having some particular amount of charge by using this equation which is called quantization of charge okay तो इसको अगर हमें एक डेफिनेशन में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं the total charge of a body is integral multiple of smallest amount of charge that is charge of electron ओके तो रिमेंबर दिस इक्वेशन क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है एक मीनिंग ये भी है कि ये टोटल चार्ज बॉडी का हर पॉसिबल वैल्यू नहीं ले सकता ओके यानी e के फ्रैक्शन जैसे e/3 2 -2e/3 ये चार्जेस एक्चुअल में एक कुछ पार्टिकल होते हैं जिनको क्वार्क्स बोलते हैं है ना क्वार्क्स के पास में फ्रैक्शन ऑफ e के चार्जेस भी होते हैं बट क्वार्क्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते ओके क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को बनाता है इसीलिए हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अभी नहीं जाएंगे बट चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन भी हो सकता है इन केस ऑफ द क्वार्क बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट पार्टिकल तो एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल होता है उसका टोटल चार्ज अगर हम बात करें तो ये n का इंटीग्रल मल्टीपल होगा n e जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं e का इंटीग्रल मल्टीपल होगा सॉरी ओके n को यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं ओके नाउ नोट डाउन Now the third property that is conservation of charge. Okay. जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी स्टडी किया है कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम हमने स्टडी किया है जिसमें मोमेंटम लीनियर हो चाहे एंगुलर हो इन बोथ केसेस द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड तो हियर आल्सो वी डिस्कस दिस कंजर्वेशन ऑफ टोटल चार्ज किसी भी बॉडी अगर वो आइसोलेटेड है किसी सिस्टम की अगर मैं बात करूं एंड दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड देन व्हाट डज इट मीन कि इस सिस्टम पर अब बाहर से कोई चार्ज नहीं आ सकता सिस्टम के अंदर और सिस्टम से बाहर चार्ज जा नहीं सकता तो उस सिचुएशन में जो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज रिमेन सेम ओके इट इज कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज ओके अब जब चार्ज को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हमने कहा था तो जो टोटल चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं जिसको हम एडिटिविटी ऑफ द चार्ज से डिस्कस करेंगे तो इट इज जस्ट एन अलजेब्रिक सम लेकिन उससे पहले कंजर्वेशन की बात करें तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट देखो इसका जैसे एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम बोलते हैं कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड सेम वे में हम ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड कि चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं केवल चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं ओनली दिस वी कैन डू जैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं कि मैकेनिकल को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया या इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया तो जैसे एनर्जी का कन्वर्जन होता है वैसे ही चार्ज का ट्रांसफर होता है ओके तो इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग हम ये भी ले सकते हैं कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ओके टोटल चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम का यूनिवर्स हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए तो टोटल यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड है और टोटल यूनिवर्स का जो चार्ज है वो भी कंजर्व्ड है ओके
it can be transferred from one body to another. Okay, so this is the third property. Now the fourth property, additivity of charge. Okay, or we can say charges, additivity of the charges. So additivity of charges means कि जब भी हमें किसी सिस्टम के टोटल चार्ज को कैलकुलेट करना होता है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो जितने भी चार्जेस हैं उनको हम एल्जेब्रिक सम करते हैं. एल्जेब्रिक सम क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ओके, वेक्टर नहीं है, इसलिए हम वेक्टर सम नहीं कर सकते. तो दिस इज द एल्जेब्रिक टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is algebraic sum of its individual charges. Okay, अगर हम इसको इक्वेशन से लिखें, then suppose the system have the different charges q1, q2, q3, q4 and so on qn, then the total charge of that system will be written as q equals to q1 plus q2 plus q3 and so on plus qn, where n is the number of charges, कि वहां कितने number of total charges है. Okay, but here also जब हम चार्ज की न्यूमेरिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसमें पॉजिटिव साइन है उस चार्ज का तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो उस समय हमें क्यू की वैल्यू को नेगेटिव रखना पड़ेगा. ओके, क्यू की वैल्यू, खुद की वैल्यू, ये प्लस साइन तो यहाँ है, बट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यू मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको हमें नेगेटिव साइन को स्किप नहीं करना. ओके, हमें नेगेटिव है तो नेगेटिव कंसीडर. जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज अ सिस्टम इन विच द charges are 3 microcoulomb minus 3 microcoulomb. Here it is 4 microcoulomb plus 4 microcoulomb we can say. Okay, and here it is suppose 7 microcoulomb. Okay, तो अगर मुझे यहाँ इस सिस्टम का टोटल चार्ज फाइंड करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? 7 microcoulomb plus 4 microcoulomb minus 3. ओके, माइनस 3 microcoulomb को मैंने कॉमन ले लिया उस साइड, तो इट विल बी 7 minus 3 will be 4 and 4 plus 4 will be 8. So it is 8 microcoulomb. Okay. So in this way we can use this additivity of the charges to find the total charge of a particular system. Okay. Now the next one, note down this. The next one is relativistic invariant. किसी भी बॉडी का चार्ज उसके मोशन या उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता. ओके, चाहे कोई भी बॉडी, जैसे हम मास की प्रॉपर्टी लेते हैं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो मास इनवेरिएंट होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर वेलोसिटी और स्पीड. बट अगर हम रिलेटिविटी में जाते हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर हम मास की बात करें तो मास भी रिलेटिव है. ओके, इसकी वैल्यू स्पीड बढ़ने पर इंक्रीज होती है. ओके, और कोई पार्टिकल अगर सी की स्पीड से चल रहा है तो उसका मास इंफिनिटी तक चला जाता है. तो एक्चुअल में और रेस्ट मास, जैसे फोटॉन्स की बात करें, ओके, तो यहां हम जो बात करेंगे मास इनवेरिएंट, सॉरी चार्ज इनवेरिएंट. ये चार्ज जो है वो रिलेटिविस्टिकली चेंज नहीं होता. यानी अगर कोई बॉडी चार्ज बॉडी है तो वो कितनी भी स्पीड से मूव करती हो उसके चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, वो स्पीड वाइज वेरी नहीं होगा. इसी को हम रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट बोलते हैं. ओके, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी is, या
body does not depends on its speed, कि वो कितनी भी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन में उसका चार्ज चेंज नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पीड। ओके, सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। अब आज जो हमने यहाँ इस लेक्चर में देखा उसको अगर हम वापस सम अप करें, ओके, तो सबसे पहले तो हमने फिजिक्स को डिफाइन किया था कि फिजिक्स है क्या, ठीक है, स्टडी ऑफ द होल यूनिवर्स, यूनिवर्सल बिहेवियर। फिर हमने जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करें उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था। फिर नेक्स्ट हमने अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात बताई। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि एक बॉडी के ऊपर अगर एक्सेस में कोई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस सिचुएशन में हम उस बॉडी को क्या कहेंगे, चार्ज बॉडी कहेंगे। ओके, सिमिलरली कुछ हमने चार्जेस के टाइप देखे कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज जो है वो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, यानी चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, जिसमें हमने इक्वेशन Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE से रिप्रेजेंट किया। फिर हमने एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस की बात की, ये कहा कि चार्ज की SI यूनिट जो है वो गुलाम है। चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज T1 A1। चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जब हम चार्ज को ऐड करते हैं तो उस सिचुएशन में अलजेब्रिक सम किया जाता है, लेकिन उस अलजेब्रिक सम में भी चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है तो हमें उस साइन को भी वहां इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने ये देखा कि चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर जो है वो उसकी स्पीड वाइज वेरी नहीं होता, ये हर पार्टिकल के लिए जो चाहे रेस्ट में है चाहे वो मूव कर रहा है, इसका अमाउंट सेम रहता है। Okay, so these are the some points or summary of the today's lecture, okay, or this lecture. So next lecture जब मैं लेके आऊंगा तो उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, ठीक है, तो वो हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ पर्टिकुलर बॉडी, जैसे एक मेथड मैंने अभी बताया था कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रख करो, तो उस फ्रिक्शन से हम चार्ज को रिड्यूस कर सकते हैं या बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सिमिलरली एक अदर मेथड है कंडक्शन, सिमिलरली द अदर मेथड इज इंडक्शन। तो इन डिफरेंट मेथड से हम कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम दो चार्जेस अगर हम स्पेस में रखें तो उनके बीच में क्या फोर्स लगेगा, उसको हम कूलाम फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कूलाम फोर्स क्या होता है, कैसे हम उसको डील करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, जो कूलाम ने रूल लॉ दिया था चार्जेस के लिए, तो दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर टिल आपको ये सारे जो नोट्स मैंने आपको बताया लिखवाए, इसको आप नोट करें अपनी अलग से नोटबुक में और उसको रिवाइज करें। ओके, बार बार जितनी 2-3 टाइम्स आपका रिवीजन अगर होगा हर पर्टिकुलर लेक्चर का, तो वो आपको बहुत बेनिफिट होगा किसी भी एग्जाम को पर्टिकुलर हैंडल करने में। ओके, आपको चीजें जितना ज्यादा हम रिवीजन करते हैं उतना ही ज्यादा हमें वो याद रहती है। ओके, सो इसी के साथ मैं ये लेक्चर फिनिश करता हूँ। थैंक यू। अगर आपको कोई भी